Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. My dear fellows and students, and those who are interested in this session of infectiology, that is infection and the disease, as already said, it is a dry subject, but comprises about 45% of the internal medicine. If you achieve knowledge of this subject, you are in a better position to comment or to decide the differential diagnosis and ultimate the final diagnosis. And this is the important module because specific therapy is there for the eradication of the infection. And I have already done sessions on the gram-positive cocci and gram-negative cocci, gram-positive bacilli and gram-negative bacilli, most of them. 1 gram-negative bacilli, which are not stained properly with the gram stain, are known as spirochetes. As the name implies that they are spiral-shaped type of the bacilli, which are different from the others. And one of the genus is Trepenoma. The Trepenoma has got many species. One is called the Trepenoma pallidum, because one of the disease which is called syphilis. And this is session number 1. And I am Professor Ali Haider speaking to you. I am an honorary global professor of medicine without any name or fame or any economics. Now this is the forgotten disease in the R zones, in tropical zones and in zone Indo-Pakistan and Burma, etc. It is not very common disease. It is very uncommon disease, and you can say it will be it is a disease which is important because of the differential diagnosis. I have seen 5 to 6 cases of syphilis in my life, and there are 2 or 3 cases, plus if you add this, then those people who have come because of the rejection of the test positive for the syphilis, and they want to go to abroad. So they become positive for this organism, and that's why they are rejected, although they have not syphilis. What we call as a latent syphilis is concerned, it was also not latent syphilis. But they reject it because of the lack of the knowledge. They didn't at that time investigated what is the cause, because the patient is absolutely asymptomatic. Now this is the disease, remember, that it is forgotten disease. Most of the people do not study it properly. What is the importance of this is, when you come in examination, if there is a differential diagnosis, and if there is a diagnosis differential in which it should be included. If you will not include this diagnosis, there are least chances to pass the fellowship examinations. So this is how because I have to take this lecture or tutorial. You can read it from the books. Yes, it is written, and the Davidson is very well written. In Harrison, it is very extensively written. And in the infection and disease books, they are about 25-30 pages are written on this syphilis. Now, syphilis in the world is still there in some of the parts of the world, and this is the diagnosis they should made. It is a misdiagnosis in those countries if they are not diagnosed properly. It may be underdiagnosed, it may be overdiagnosed. It is possible. So I will take this one, and I want to clarify that the Spirochete is a member of the phylum Spirochaeta,
the sparrow, shear, tota, synonyms of the sparrow-kids, is the same one, which contains the distinctive diadem, double membrane, and it is gram-negative bacteria, most of which have long, helically coiled, corkscrew-shaped, spiral-shaped, and the name of the cell is spirochetes. Spirochetes are the chemoheterotrophic in nature, with a length between 3 and 500 micrometer and diameter around 0.90 to at least 3 micrometer. So direct evidence can be done. You should do the microscopy. Rather, I will say the high power field. You can detect this organism directly. Directly, you can diagnose this condition. Now, this is how in the high power field. This is the micrographs which is seen here. Looks the spiral shape of the bacteria penetrating into tissues. Morphologically, that spirochetes distinguished from the other bacteria phyla by the location of the flagella. They are called the endoflagella, and most of the bacteria there is exoflagella. Here is the endoflagella, downgoing, inside the cell, which are sometimes called the axial filaments. The endoflagella are encoded at each end pole of the bacterium within the paraplasmic spaces, that is between the inner and the outer membranes of the bacterium, where they project backwards to extend the length of the cell. Now they cause twisting motion, screwing motion, which allows the spirochete to move about. When reproducing, a spirochete will undergo a sexual transfer binary fission. Most spirochetes are free living and anaerobic type, but there are numerous exceptions. They may be partially or the aerobic type of organism, their possibility, or facultative anaerobic. Spirochete bacteria are diverse in their pathogenic capacity and the ecological niches that they inhabited, as well as the molecular characteristics, including the guanine, cytosine content, and the genome size. It depends upon this. In the different type of the geographical areas, you find the different types are found which characterize the genome size, and this is how one can understand the pathogenicity of this bacteria. The classification of human interest of the spirochete, there are many spirochetes in the world. One is Leptospira species, which cause the leptospirosis. We will discuss afterwards the Borrelia burgdorferi, or Mahonii, or Bacilli, Garni, etc., which cause the Lyme disease in the different zones or different geographical areas. It is also important. At one time in 1994 to 2112, there are a lot of BCQs were made on this disease, Lyme disease. The Borrelia recurrentis, which causes the relapsing fever. It may be a mild-borne relapsing fever, or it may be other arthropod-borne relapsing fever. Another one is the Trepenoma Pallidum subspecies, which cause the trypanomatosis, such as Syphilis, and other subspecies called yours, Pinta, Beagle. Now, this type is which we under discussion. Another one is the Barcospira pilocycoli and the Alabajae. And this is specifically located in the intestine and causing the intestinal spirochetosis. Although it is not detected in our country, but it is detected in African zones. Syphilis. Remember, this is the very important point, that is the danger lies behind this disease. Lot of the patients in 300 of years
they have gone to the graves because of this disease. It was not treated at that time. And syphilis has been known as a great imitator, means that it should include any differential diagnosis, as it may cause the symptoms similar to many other diseases. देखिए एक बात याद रखिए, सिफिलिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, HIV है, यूरेमिया है और डायबिटीज़ है. ये हर किस्म की डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आप डाल सकते हैं. कोई भी आए, न्यूरोलॉजिकल केस आए या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल आए या फिर हेपेटोबिलियरी आए या कुछ भी आ जाए, उसमें अगर ये आप इंक्लूड कर देंगे तो इसमें हंसने की बात नहीं है. बिकॉज ये जो है ना, ये दिस इज डेफिनेटली अ ग्रेट इमिटेटर. It will involve all parts of the body, including just like the autoimmune diseases, which should be included in the differential diagnosis of any case, for example, arthralgia associated with the skin infection or skin lesions. Talking about syphilis now. Focus on the syphilis. It is a sexually transmitted infection caused by the bacterium Trepenoma pallidum. The signs and symptoms of syphilis vary depending in which of the four stages it is present. The first stage is primary, then secondary, then a very long latent period, and then tertiary. The primary stage classically presents with a single chancre, a firm, painless, non-itchy skin ulceration, usually between 1 centimeter and 2 centimeter in diameter, though there are maybe multiple sores. It is possible with one single ulcer or maybe multiple sores. On the other hand, in secondary syphilis are diffuse rash. This is not ulceration. Diffuse rash occurs, which frequently involve the palms of the hands and the soles of the feet. There may also be sores in the mouth and the vagina. In latent syphilis, which can last for many years, there are few or no symptoms. And this is the stage they have diagnosed those people which I have talked about, that they have got latent syphilis, although they have not latent syphilis. In tertiary syphilis, there are gummatous infection. Now, gummatous representations. Gumma means that soft, it is non-cancerous growths. They are coming out from the mucosa or from the skin. There will be a neurological problem because of this gummas. There may be the cardiovascular complication associated with it. So it is important for the neurologist, it is important for the cardiologist as well. The method of transmission, that it is through the sexual activity. That is why it is classified under the heading of sexually transmitted diseases, STD. It may also be transmitted from the mother to the baby during pregnancy. That is called the congenital syphilis at that time. And other diseases caused by the Trepenoma bacteria, there is Trepenoma pallidum, that is called yaws. It is Trepenoma pallidum subspecies, Partono, which we'll discuss afterwards, Pinta, that is Trepenoma keratum, and the beetle is also there, and a non-viral endemic syphilis, and which is not very, very common. It is non-viral. It is not sexually transmitted. Now, this is not sexually transmitted disease. That is the Pinta or the beetle or non-venereal endemic syphilis. Now, Trepenoma pallidum subspecies endemicum. This is the subspecies of the non-venereal type of the endemic syphilis. Now, these three diseases are not typically sexually transmitted, as I already mentioned. It is the bad hygiene. The global incidence, that is in 2015, about 44.4 million people had syphilis infections, of which 6 million were new cases. 6 million in the world. During 2015, it is caused by 170,000 deaths
down from the 202,000 in 1990 because of the correct time of the diagnosis and correct management plan. After decreasing dramatically with the availability of the magic drug penicillin in 1940s, the rates of the infection have increased since the turn of the millennium in many countries, often in combination with the human immunodeficiency syndrome. This is the co-infection, because one who is going for the STD will have the syphilis as well as HIV. Remember, the most important co-infection with the syphilis is HIV. This is believed to be partly due to the increased sexual activity, prostitution and decreasing use of condoms. इस्लाम ने जिन चीज़ों को मना किया था और उसके बारे में मना किया गया, कौम लूत के फेल हैं, इसके अलावा ज़िनाकारी है, इसको गुनाह कबीरा करार दे दिया गया है और उसकी बड़ी सख्त सज़ाएँ। अगर वो इस पर अमल कर लेते, इस्लाम के ऊपर अमल कर लेते, दे फॉलो द इस्लामिक रूल्स, तो ये डिजीज़ का नाम निशान ना होता। इसको आप समझ लेते कि ये बुली बिसरी याद हो जाती, लेकिन ऐसा ना हो सका। लोगों ने इस्लाम को एडॉप्ट तो किया लेकिन उस पर अमल नहीं किया। तो इस्लाम को खाली कबूल करने से इस्लाम नहीं हो जाता, इस्लाम को दिल से कबूल करने से इस्लाम होता है, ऐसे नहीं होता। अब ये जो एरिया हैं जिसमें आपको मैं बता दूं कि येलो जहाँ पे है एरियाज, वहाँ पे नील है। मिसाल कनाडा है, अब इस वक्त की पोजीशन बता रहे हैं। कनाडा में, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में ये नहीं है, ना होने के बराबर है। जबकि पिंक या पिंकिश लाइट पिंक जो एरियाज हैं, माइल्ड डिजीज़ हैं इसके अंदर, उनका रेट ऑफ इन्फेक्शन है लेकिन इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन है। बिल्कुल रेडिश जो टिंज है ये यहाँ पे, ये देखिएगा, ये लीबिया है, लीबिया के कॉन्टेंट्स हैं, फिर यहाँ से आए मिस्र से नीचे ये पूरा जोन, मोज़म्बिक वगैरह, ये सारे एरियाज जो हैं हाईली जो है ना इनके अंदर एंडेमिक हैं और इनमें बहुत ज़्यादा केसेस डिटेक्ट किए गए हैं। तो इस तरफ अगर आए, हमारी तरफ सऊदी अरब में ये है नहीं, और उसके कुछ एरियाज़ के अंदर जो है सऊदी अरेबिया के ये पाया गया है कुछ एरियाज़ में, और उसकी वजह मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो सख्त कवानीन नाफिज हैं। यमन की तरफ आ जाएँ, शाम की तरफ आ जाएँ, इस एरिया में आ जाएँ, फिर रशिया में आ जाएँ और चाइना में आ जाएँ, तो वहाँ पे भी ये बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है। मगर हमारे मुल्क में जो है ये सब एंडेमिक नेचर की डिजीज़ है। इंडो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में आप देखें, ये जो है श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, फिर ऑस्ट्रेलिया में नील है, जहाँ हाइजीन की जो है ना रखे हैं और उन्होंने सेक्सुअल जो है ना एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा सेफ प्रिकॉशन की हैं, वहाँ पे तो डिजीज़ से बच गए हैं। और वो कंट्री जो इस्लामिक लॉ को बहुत सख्त ओबे करते हैं, तो वहाँ पे भी डिजीज़ जो है ना बहुत कम है। पाकिस्तान का इंसिडेंस का मसला ये होता है कि स्टडी हम जो करते हैं ना पाकिस्तान में, वो क्या करते हैं, कोई एरिया ले लेते हैं, टोटल एरिया को कवर नहीं करते हैं। सिंध है, बलूचिस्तान है, दूसरे सूबे दो और हैं। और जैसे इन्होंने स्टडी की है सिफिलिस की फैसलाबाद में, बाई कॉजिंग ट्रिपेनोमा पैलिडियम facilitate the transmission of HIV because this is the co-infection. तो वी ऑब्जर्व, यानी जिन्होंने स्टडी की है ये जहाँ से जर्नल में, वो कहते हैं कि 29.5% प्रेवलेंस है। अब ये जो है डायग्नोसिस, मिसिंग डायग्नोसिस थी, ये वो सामने लेके आए हैं बाई इम्यूनोकेमिस्ट्री और दूसरे ज़रिए से ये इन्होंने पकड़ी है, विच सपोर्ट द स्टडीज़ बाय द बेजल एट al एंड रेहान। इससे पहले जो स्टडी की गई थी उनसे इसे कंपेयर किया है तो रिपोर्टिंग 32.4% थी, जो 2012 में आके ये 29.5% हो गई, एंड देन 31.6% syphilis infection rate respectively in the region.
ये कम तो हो गई है लेकिन ये ख़त्म नहीं हुई। एक जगह उन्होंने स्टडी की फैसलाबाद में, और जगह की कोई स्टडी मुझे नहीं मिली। कराची है सबसे इम्पोर्टेंट जोन है, लाहौर है जहाँ सबसे ज़्यादा कारोबार होता है, ये जो बाज़ारी कारोबार होते हैं वो वहाँ पे होते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये कारोबार होते हैं दूसरे एरिया के मुकाबले में। वहाँ पे तो स्टडी नहीं किया गया है, अगर किया भी गया था तो वो छुपा लिया गया है। हम ये कह सकते हैं ना, हमें नहीं मालूम, वी डोंट नो। हमारे लिए इंटरेस्ट है इसमें वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस का, जैसे मैंने पहले आपको बताया। अब इसमें से एक एक करके आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्राइमरी सिफिलिस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताई थी वो शंकर है। वो कब होता है? इंक्यूबेशन पीरियड के बाद, 2 to 6 वीक्स कॉन्टैक्ट के बाद ही आता है, लेकिन रेंज हो सकता है 10 to 90 डे, 3 मंथ्स के बाद भी हो सकता है। स्किन लीजन विच इज कॉल्ड शंकर appears at the site and this contains infectious parasites। जैसे पीनिस का जो ग्लांस पीनिस है वहाँ पे, ये वजाना है, उसके अराउंड ये डेवलप होता है। ये ट्यूमर लाइक होता है बिल्कुल, जस्ट लाइक दिस पिक्टुलर eruption है। और दिस इज क्लासिकली 40% ऑफ द टाइम सिंगल फॉर्म, पेनलेस, नॉन इची स्किन अल्सरेशन। फिर बाद में ये अल्सरेशन हो जाता है, पहले हार्ड होता है फिर अल्सरेशन हो जाता है। द क्लीन बेस रहती है, शार्प बॉर्डर्स, अप्रॉक्सीमेटली 0.3 to 3 सेंटीमीटर इन साइज। तो डर्माटोलॉजिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब एक आदमी आया है जिस टाइप का ये लीजन में बता रहा है, ये कह रहा है मुझे कोई भी हिस्ट्री वो नहीं देगा, पहले याद रखिए इस बात को, एसटीडी की हिस्ट्री नहीं देगा वो। फिर जब उसको आप आराम से बिठा के पूछेंगे कि अगर आपने नहीं बताया तो ट्रीटमेंट नहीं होगा, यू विल डाई। लिहाजा मुझ उसको कॉन्फिडेंस में लें और उसे कहें कि ये बात मुझ में सेगाए राज रहेगी, आप में और मुझ में सेगाए राज। तो वो बता देगा कि जी हाँ, मैं जो था बाजारी औरत के पास गया था अब से कोई 2-3 महीने पहले, उसके बाद ये चीज़ डेवलप हुई है। तो होनी तो इसी तरह से चाहिए। इसको छुपाने वाला छुपा रहा है, इसको किसी सूरत में मानने को तैयार नहीं है। उसके लिए एक ही अर्थ है कि उसको आप ये खौफ दिलाएं कि डेथ हो जाएगी, एंड फाइनली टू एन इरोजन होता, अल्सर हो जाता है इसके अंदर। मल्टीपल लीजन्स आर एट द साइड भी में भी पॉजिटिव हो सकते हैं, एक नहीं हो सकता, में भी मल्टीपल। को इन्फेक्शन अगर HIV के साथ हो में भी पेनफुल हो जाएगा। अगर ये पेनफुल हो गया और टेंडर हो गया तो HIV इसका मतलब है पॉसिबल है इसके साथ। And they may occur in places other than genitals. The most common location in the woman is cervix, inside इसके अंदर म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकोजा में ये डेवलप हो जाता है। The penis is heterosexual, man 99% anally, and rectally in men who have sex with the man 34%। तो सोडोमिस्ट जो होते हैं उनको ये हो जाता है। तो कैटामाइट्स जो रिसीविंग एंड है उसमें भी हो जाता है। इसके साथ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके साथ रिएक्टिव लिम्फोडेनोपैथी है, फ्रीक्वेंटली 80% अकर अराउंड द एरिया ऑफ द इन्फेक्शन। अब एनल कान की जो ड्रेनेज है वो याद कीजिए, एनल कनाल की जो भी आप करेंगे तो वो याद कीजिए कि कहाँ पे जो है ना ड्रेनेज होती है। ये सवाल जो है ना FCPS पार्ट 1 में भी आ सकता है, वो ड्रेनेज के ऊपर क्वेश्चन कर रहे होते हैं। वो एक चीज़ बताएंगे कि यहाँ एक रीजन हुआ है और फिर लिम्फोडेनोपैथी हुई है, तो ये पूछेंगे आपसे कि पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि किस तरीके से जो है ना इन्फेक्शन जो है वो लोकेट होगा lymph nodes। So there is a possibility of the what is very near to it are the lymph nodes which are superficial femoral lymph node, deep femoral lymph nodes। जो उसके इर्द गिर्द lymph nodes हैं उसकी बात करें, वहाँ पे जो है ना ये हाइपरप्लेसिया हो जाता है, रिएक्टिव हाइपरप्लेसिया। अच्छा खासा जो है ना इंग्वाइनल lymph nodes they are involved। The lesion may persist for 3 to 6 weeks if untreated।
अगर ट्रीटमेंट दे देंगे तो ये लीजन ख़त्म हो जाएगा और प्रोबेबली ये आगे नहीं जाएगा, पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर लीजन को ट्रीट नहीं किया गया तो ये खुद ब खुद ही जो है ना गायब हो जाएगा और 6 वीक्स के बाद ये ऑटोमेटिकली जो है ना ये गायब हो जाएगा। अब इसको मैंने आपने एलोबरेट किया है, पिक्चर्स की में दिखाया, ये देखें आप, पीनिस को भी दिखाया, फिर इसकी माइक्रोस्कोपी में स्पायरोकिड्स थे, इन्होंने यहाँ से डायरेक्ट एविडेंस उठाया। फिर यहाँ पे नहीं हुआ, ये यहाँ पे हो गया है, ओपन सोर शंकर कहते हैं इसको। इसको अगर माइक्रोस्कोपी की तो ये पता चला कि इसमें स्पायरोकिड्स थे। ये शंकर जो होता है ये यहाँ पे भी हो सकता है। आपको मालूम है सेक्स जो होता है, ओरल सेक्स भी लोग करते हैं और पेमेंट लेते हैं, तो बुक तो उसको यहाँ पे ये डेवलप हो गया है। ये रिसीविंग एंड है, लेडी का रिसीविंग एंड है। जिस आदमी ने एंजॉय किया था इसको वो तो जो गया वो तो उसको तो खैर मरना ही मरना है, लेकिन जो रिसीविंग एंड था उसको भी इसने यहाँ पे कर दिया, शंकर डेवलप हो गया। फिर लिम्स के अंदर भी डेवलप हो सकता है, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं और इनकी डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे तो पता चलेगा। फिर उसको आप क्या करें, स्किन बायोप्सी लें और उसको पकड़ लें आप, बात ख़त्म, और मैनेजमेंट करते हैं उसको। और ज़ाहिर है कि इसकी पेंसिलिन या पेंसिलिन रिलेटेड ड्रग्स बड़ी इफेक्टिव ड्रग्स हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है? सेकेंडरी सिफिलिस अकर्स, और पोस्ट प्राइमरी सिफिलिस जो है उसको सेकेंडरी में डिवाइड किया था उन्होंने, ब्रिटिश ने, और लेटेंट सिफिलिस में डिवाइड किया था। यहाँ हम अलग अलग बताएंगे इसको। तो सेकेंडरी सिफिलिस अकर्स अप्रॉक्सीमेटली 4 to 10 वीक आफ्टर द प्राइमरी इन्फेक्शन। वो ख़त्म हो गया, उन्होंने कहा जान छूट गई, नहीं जान नहीं छूटी। 10 वीक के बाद या 12 वीक के बाद, उसके 3 महीने बाद क्या हुआ कि secondary disease is known for the many different ways it can manifest symptoms involving the skin, mucous membranes and lymph nodes. इसके अंदर क्या होता है कि symmetrical reddish pink non-itchy rash on the trunk and extremities develop हो जाते हैं, including the palms and the soles, very very heavy rash होता है ये। It may form broad and flat whitish wart-like lesions on mucous membranes। अच्छा, वहाँ पे जो है ये वाटी टाइप का होता है तो इसको कहते हैं कंडाइलोमेटम लिटम। इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसी डिजीज़ को स्पेसिफिक कर देते हैं। जैसे कि शंकर आपने कहा था, यहाँ कंडाइलोमेटम लिटम डेवलप कर देता है। ऑल ऑफ दीज लीजन्स हार्बर बैक्टीरिया इन्फेक्शन, दे आर डायरेक्टली जो है ना डायरेक्ट एविडेंस से माइक्रोस्कोपी से पकड़ सकते हैं। Other symptoms include fever, sore throat, malaise, weight loss, hair loss, headache. Non-specific हैं। Rare manifestation include the liver inflammation. It can cause liver inflammation, that is acute hepatitis, and kidney disease may be possible. Joint inflammation, it is reactive type of arthritis, periostitis, inflammation of the optic nerve, uveitis, and इंटरस्टिशियल कैरोटाइटिस तक डेवलप हो जाता है, लेकिन ये कॉमन नहीं है। द एक्यूट सिम्टम्स यूजुअली रिजॉल्व आफ्टर 3 to 6 वीक्स। इसके बाद जो है 6 वीक्स तक फिर ये रहता है, फिर ख़त्म हो जाता है। अबाउट 25% ऑफ पीपल में प्रेजेंट विद रिकरेंस ऑफ सेकेंडरी सिफिलिस। इसमें ये भी हो सकता है ये रिलैप्स हो जाए। तो मैनी पीपल हु प्रेजेंट विद सेकेंडरी सिफिलिस, 40 to 80% women and 20 to 65% of the men do not report previously having had the classical शंकर। उनको याद ही नहीं होता कि कभी उनको कोई शंकर डेवलप हुआ था, उनको याद ही नहीं है, वो भूल चुके हैं किसी किस्म का कोई शंकराइड टाइप का लीजन हुआ था। यानी कुछ लोग तो बिल्कुल याद होता है, कुछ लोगों को याद नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर आप रोमेटिक फीवर स्टडी करेंगे और पूछेंगे कि पास्ट हिस्ट्री सोर थ्रोट की 2, हालांकि अभी अभी हुआ है, महीने 1.5 महीने के वाक़यात होते हैं ये, वो उसको भी याद नहीं रखता, उसको भूल जाता है। हमने जो स्टडी की है 40% लोग सिर्फ बताते हैं कि उनको सोर थ्रोट हुआ था, रोमेटिक फीवर की बात करो, और 60% को याद ही नहीं होता कि उनको रोमेटिक फीवर हुआ था। एक्चुअली उनको नहीं पता। अब उसके बाद जो है ना वो इसके अंदर दिखाया है, ये
लेकिन डिफ्यूज रैश है स्किन पे, देखें स्केली रैश है ये जो दिखा रहे हैं हैंड्स में। अब ये भी खुदा न खास्ता इस तरह का कोई रैश डेवलप किसी को हो गया बैक के ऊपर, आप देखें ये जो ड्राई है ये नॉडुलर है और स्किन बिटवीन ये नॉर्मल है, लेकिन ये तमाम का तमाम एरिया को इन्वॉल्व कर दिया, कहीं कि अल्सरेशंस भी हैं। और साथ में जो लिम्फोडेनोपैथी ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स हैं, जैसे एक्जिला में लिम्फ नोड्स हैं तो डेफिनेटली एक्सिलरी लिम्फ नोड इनलार्जमेंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे हैं तो ऑक्सीपिटल लिम्फोडेनोपैथी हो जाएगी। ये बेसिक रीजन है इसका, सेकेंडरी सिफिलिस का, ये शंकर नहीं है ये। लेकिन अगर यही चीज़ जो है ना म्यूकस मेम्ब्रेन में डेवलप अंदर करेगी तो उसको कहते हैं कंडालोमेटालिटम, और वो जो होती है वो बिल्कुल जो होती है वॉटी लाइक होती है। लेटेंट सिफिलिस के बाद वो जान छूट गई, चलो वो समझ में ठीक हो गया। अब इसमें जो है ना आपके पास कोई सिम्टमेटोलॉजी नहीं है, सीरोलॉजिकल प्रूफ ऑफ इन्फेक्शन है विदाउट सिम्टम ऑफ द डिजीज। इट डेवलप्स आफ्टर सेकेंडरी सिफिलिस। अब ये इसकी हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है, पेशेंट को पता होना चाहिए कि कभी उसको रैश हुआ था इस तरह सा पीठ के ऊपर, हाथों पे इस तरह से इसकी लार्ज लिम्फ नोड्स हुई थी, उसको याद अगर है तो बहुत आसानी के साथ पकड़ लेंगे। इस डिवाइडेड जो अर्ली लेटेंट है, लेटेंट स्टेजेस है अकॉर्डिंग टू WHO। 2 साल के बाद आफ्टर ओरिजिनल इन्फेक्शन ये चीज़ जो होती है लेटेंट रहती है, 2 साल तक लेटेंट रहती है, मे बी मोर देन दैट। अर्ली लेटेंट सिफिलिस इन्फेक्शन 25% ऑफ पीपल कैन डेवलप रिकरेंट सेकेंडरी। इसके अंदर जो है रिकरेंसी होती है सेकेंडरी इन्फेक्शन, वो सामने आ जाता है ड्यूरिंग विच स्पायरोकीटर एक्टिवली रेप्लिकेटिंग आर इन्फेक्शंस। इसमें वो आसानी से पकड़ लेते हैं। लेकिन लेट स्टेजेस जो हैं 2 years के बाद अगर कोई डेवलप हुआ, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, वो इन्फेक्टिव तो नहीं होता लेकिन वो अपना कारनामा अंजाम दे देता है। जैसे रोमेटिक फीवर जो होता है, जिसमें होना था वो तो हो गया, उसने तो अपना काम कर दिया। अब उसके 15 साल बाद पता चला किसी को मार्टल स्टेनोसिस हो गया। तो ये वाला वो फेज है जो कि लेटेंट है और लेट है। अब वो अपना लीजन जो है ना बाकायदा जमा देगा वहाँ पे, वो ग्रेनुलोमा बना लेगा, वो कुछ और मसाइल प्रोड्यूस करेगा विदाउट ट्रीटमेंट। अगर ट्रीटमेंट आप कर देते थे, पहले ही कर लेते प्राइमरी में, तो सेकेंडरी में नहीं आता। अच्छा ट्रीटमेंट सेकेंडरी में कर देते तो वो लेटेंट नहीं होता। इस तरह समझते हैं इसको। अप्रॉक्सीमेटली 15 to 40% पीपल कैन डेवलप। ये केसेस मैंने देखे हैं, 5 केसेस मैंने देखे हैं अभी तक लाइफ में, जिसमें 2 न्यूरोलॉजी के हैं और 3 जो हैं वो कार्डियोवास्कुलर हैं। अब टर्शरी के लिए अगर जो है ना इसके ऊपर जो है फोकस करें। ये 15 साल बाद भी हो सकता है, मैंने जो देखा है वो 25 years के बाद भी देखा है। इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं एंड जो बेसिक रीजन है इसका याद रखें, वो गुमा है, गुमेटस सिफिलिस। गुमेटस सिफिलिस वो एक सिफिलिस है जिसके अंदर जो है ग्रेनुलोमा बने और किसी जगह लोकलाइज हो जाए। लेट न्यूरोसिफिलिस है, कार्डियोवास्कुलर सिफिलिस है। गुमेटस सिफिलिस और लेट बिनाइन, ये बिनाइन है लेकिन बहुत लेट है। यूजुअली occurs 1 to 46 years after the initial infection। मैंने देखा 25 years के बाद, with an average of 15 years। This stage is characterized by the formation of the gumas. What are gumas? Are soft tumor-like balls of inflammation which may vary considerably in size. They typically affect the skin bone। ये बोन में होता है, स्किन में होता है, लिवर में होता है। लिवर में होता है गुमेटस, हेपेटाइटिस करता है। बोन के अंदर जो होता है क्रॉनिक ऑस्टियोमाइटिस करता है, पेरियोस्टाइटिस करता है। और स्किन के ऊपर ये लीशंस देता है जो कि स्पेसिफिक होते हैं, बट इट में अकर एनीवे। गुमेटस जो है ना, अगर आप अब यहाँ पे अगर आएगा और फेस के पास होगा तो उसको लगेगा स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। इसीलिए मैंने कहा कि ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो जाती है, हर चीज़ की डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है। इस वजह से इसको पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। तो कार्डियोवास्कुलर सिफिलिस यूजुअली अकर 10 to 30 years after the infection। The most common complication is syphilitic aortitis, aortic irritation, वो कॉज करेगा और which may result in aortic aneurysm formation। I have seen 3 aortic aneurysms
तीनों केसेस के अंदर एन्यूरिज्म थे और असेंडिंग एओर्टा में थे। मैंने इसको कहा कि इसको कार्डियोवास्कुलर सिफिलिस के लिए वर्कआउट करो और वो पॉजिटिव आ गया। अभी भी जो है ना इस बंदे को मैनेज किया जा सकता है अभी भी, अगर आपने सही टाइम पे पकड़ा तो। अदरवाइज ये कि बर्स्ट आउट हो गया तो फिर तो डेथ हो जाएगी पेशेंट। न्यूरोसिफिलिस जो है ना उसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, ब्रेन इन्वॉल्व हो सकता है, वहाँ पे ये गुमा बन सकते हैं, गुमेटिव इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इट में भी सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक हो सकता है। इट कैन occur at any stage of the infection, and it may occur early being either asymptomatic or in the form of the meninges involved in that is seborrheic meningitis, or late as a meningovascular syphilis, or late as GPI, general paralysis of insane, or TB, that is tabes dorsalis. ये इसके न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस। अब इसको अलग अलग करके अगर पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसमें तो कुछ चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट है जिस पर डिस्कस किया जाएगा बाद में। मेनिंजोवास्कुलर सिफिलिस इन्वॉल्व इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्मॉल एंड द मीडियम आर्टरीज ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब वहाँ पे जो है ये वास्कुलाइटिस प्रोड्यूस करेगा मेनिंजेस के साथ बिटवीन 1 to 10 years आफ्टर द इनिशियल इन्फेक्शन। एंड मेनिंजोवास्कुलर सिफिलिस जिसको अलहदा हम बताया जा रहा है, सो देखें इसको अलग करके बताया जा रहा है। बिकॉज इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द स्ट्रोक, cranial palsy and spinal cord inflammation। इसको थोड़ा इससे अलग कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज एक्यूट ऑनसेट होगा इसका बहुत। लेट सिम्टोमेटिक न्यूरोसिफिलिस कैन डेवलप डिकेड्स आफ्टर द ओरिजिनल इन्फेक्शन एंड इन टू टाइप्स। इसमें जो है ना बाकी जो बच गया वो बच गया GPI यानी जनरल पैरालिसिस ऑफ इंसेन एंड टेबेस डोर्सालिस। जनरलाइज जो है ना पैरालिसिस को अगर डिस्कस करें तो उसमें डिमेंशिया इंपॉर्टेंट है, पर्सनैलिटी चेंजेस इन्वॉल्वमेंट है, डिल्यूजन्स है, सीजर्स है, साइकोसिस एंड डिप्रेशन। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर ये किसी को हो रहा है तो कौन सा एरिया ब्रेन का इन्वॉल्व है। आपके लिए छोड़ दिया, आप खुद बताइए। tabes dorsalis is characterized by the gait instability because it involves the definitely spinocerebellar tract, sharp pains in the trunk and the limbs, impaired positional sensation of the limbs as well as having a positive rhombox test जो शो कर रहा है सेरिबैलम को, चाहे उसकी एफरेंट सप्लाई आए चाहे इफरेंट सप्लाई आए, अगर डिस्टर्ब हो गई तो रॉम्बॉक्स पॉजिटिव हो जाएगा। बोथ tabes dorsalis and GPI में प्रेजेंट विद दी ये जो अर्गाइल रॉबर्टसन पीपल। अब इसके बारे में जो है ना एक ज़माने में वाइवा होता था ना हमारे ज़माने में, इसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता था। तो ये अर्गाइल रॉबर्टसन पीपल हमारे जो सीनियर थे उन्होंने कहा भाई इसको याद रखने का तरीका ये है कि दो रिफ्लेक्स होते हैं। पीपल रिफ्लेक्स होता है, एक तो या पीपल को आप वो करते हैं जब आप रोशनी डालते हैं, दूसरा अकोमोडेशन रिफ्लेक्स होता है, ठीक है ना। दो रिफ्लेक्स होते हैं। तो अर्गाइल रॉबर्टसन पीपल में जो है वो एक रिफ्लेक्स जो होता है वो ख़राब हो जाता है, लेकिन दूसरा रिफ्लेक्स वो नॉर्मल रहता है। इसके अंदर क्या होता है, द पीपल्स कंस्ट्रिक्ट व्हेन द पेशेंट फोकस ऑन नियर ऑब्जेक्ट्स, अकोमोडेशन रिफ्लेक्स होता है, यानी अकोमोडेशन रिफ्लेक्स पॉजिटिव होता है। तो AR जो लिखा है ना उन्होंने अर्गाइल रॉबर्टसन, उन्होंने कहा इससे याद रखो कि अकोमोडेशन रिफ्लेक्स पीपल को छोड़ दे, AR को याद रखें। तो अकोमोडेशन रिफ्लेक्स में इसमें जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसके अंदर मौजूद होता है। बट वो जब पिपुलरी रिस्पॉन्स जो है टू द लाइट, जैसे पिपुलरी रिफ्लेक्स जिसे कहते हैं, वो जो है लॉस हो जाता है और उसकी अपनी वजह है। ARP की अगर आप करें पैथोजेनेसिस पर, जो कि ज़ाहिर है ऑप्थेल्मोलॉजी का पार्ट है, लेकिन अगर उसको आप करें इसके अंदर जो एफरेंट सप्लाई, इसकी इफरेंट सप्लाई है, आपको पता है कि सिंपैथेटिक इनोवेशन है उसकी। तो उसमें जो है वहाँ पे जो है ना वो अकोमोडेशन का ज़्यादा ताल्लुक वो तो रहता है, लेकिन कंस्ट्रिक्शन जो हो रहा है वो ज़्यादा हो जाता है। पिपुलरी मसल्स जो हैं जो कंस्ट्रिक्ट होते हैं और फिर उसके बाद डायलेट होते हैं,
वो ज़ाया हो जाता है। अब वो ये मुझे सब बता दीजिए कि पीपल रिफ्लेक्स जो है उसका एफरेंट सप्लाई क्या है और एफरेंट सप्लाई क्या है। ये जो है ना पार्ट 1 लोग जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके लिए उनको ये आना चाहिए और उनका जवाब वो खुद ही दें। ये गुमा थे जिनकी मैंने बात की। अभी देखिए दहशतनाक है, चेहरे पे देखें, सर पे देखें, फेस पे देखें, अंदर देखें। तो ये मॉडल बनाया था किसी ने 1880 के अंदर, ये आर्टिस्ट था, उसने बनाया था। चेहरा जो है मस्क हो जाता है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, आँख के पास है, इधर है, इधर है, पूरा जो है ना एरिया ऐसा लगता है पूरे एरिया में कैंसर फैल गया, जबकि कैंसर नहीं है ये गुमा। ये कैंसरस टाइप के नोड्यूलर इन्फेक्ट इन्वॉल्वमेंट है स्किन की, बहुत बड़ी बड़ी। तो फेस अब अगर किसी का इन्वॉल्व होगा तो फिर तो बहुत ही बुरी बात है। फिर तो ज़ाहिर है आपको इसको मैनेज करना होगा। फिर क्या होगा कि आपको क्या करनी पड़ेगी, इसमें जो है ना वो प्लास्टिक सर्जरी करके इसको बेहतर कर सकते हैं। मैंने केस देखा था अभी कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ, 15 दिन पहले। वो आदमी जिससे मैं बात कर रहा था वो भाग गया। फिर मैंने कहा कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। उसने कहा क्या हेल्प करना चाहते हैं? मैंने कहा भाई ये फेस आपका इतना ज़्यादा मस्क हो गया है, तो क्या आपको प्रॉब्लम है? कहने लगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खा पी लेता हूँ, ठीक हूँ। मैंने कहा लेकिन ये जो कुछ आपके चेहरे पे ये सारा जो आया है ये मतलब क्या हुआ था? तो उस आदमी ने बात नहीं की, वो चला गया वहाँ से। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ अभी भी मौजूद हैं लोग। इसका जो है ना ये देखें ना, आपको प्रोटोटाइप आपको दिखाइए, ये बना के उन्होंने ड्राइंग बनाई है, स्टैचू बनाया है फेस का, ये बताने के लिए। कार्डियोवास्कुलर सिफिलिस के अंदर जो है ना बेसिक प्रॉब्लम जो है सिफिलिस के ऑटाइटिस है। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये प्लेन एक्सरे है और इसको मैंने पढ़ने का तरीका भी बताया हुआ है और इसके अंदर पैथोजेनेसिस पूरी बताई है कि क्या होता क्या है। कि ट्यूनिका मीडिया जो है इसका जो होता है वीक हो जाता है, वहाँ इस्कीमिया हो जाता है डेवलप। ट्यूनिका लिमेंटिशिया में कुछ नहीं होता, लेकिन ट्यूनिका मीडिया जो है वो वीक होता जाता है। इस तरीके से वीक होता है कि उसके बाद ही टर्निंग देखें आप, इसके अंदर वेसल टर्न आउट होनी शुरू हो जाती है। और फिर ज़ाहिर है कि ट्यूनिका मीडिया और इंटाइमा में यह है कि इन्फ्लेम्ड होगा, वास्कुलाइटिस करेगा और बेसिकली जो है ना ये वीक करता है ट्यूनिका मीडिया को। जब मीडिया को करेगा तो एओर्टाइटिस होगा यहाँ पर डेवलप। अगर वेसल्स के अलावा इन्वॉल्व हुई हैं तो हो सकती हैं, पूरी बॉडी में भी हो सकती है, तो वास्कुलाइटिस सिंड्रोम में आ जाएगा अभी। तो सिफिलिस एओर्टाइटिस अगर होगा तो हमेशा एओर्टिक रिग्रेटेशन के साथ होता है। तो हम वैसे ही पकड़ लेते हैं किसी को AR, अगर किसी यंग एज में आदमी को पकड़ा है AR तो उसकी वजूहात होनी चाहिए। ज़ाहिर है वो रोमेटिक फीवर ही निकलेगी, नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर आप को रेंदने की कोशिश करेंगे तो आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे, और अगर इससे भी ज़्यादा चला गया तो फिर एनेरिज्म कॉज कर देगा। एनेरिज्म जो होता है इसका बाकायदा बल्ज आउट होता है यहाँ से, यानी ये एरिया जो है ये अपर पारामिनोविस्टिनम है, ये ऑटिक नकल है और उसके ये निचला हिस्सा है जहाँ पे पल्मोनरी कोनस है, ये लेफ्ट एट्रियम जोन है। और यहाँ से आप ये ट्रेस करना शुरू करें इसको, ये गया ये गया ये गया, फिर ऐसे गया घूम गया। अब यहाँ पे ये पार्ट जो है वास्कुलर पार्ट है, इससे बल्ज आउट हो गया। ये होना नहीं, ये नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली ये आके यहाँ पे एंड हो जाता है, ये बल्ज नहीं आउट होता। तो ये पकड़ना एक्सरे प्लेन में भी आसान है, सिटी में तो आएगा ये कैटेगरिक जैसे इन्होंने रिस्पॉन्स दिया है। और न्यूरोसिफिलिस के अंदर जो है अर्ली फॉर्म में एसिम्प्टोमेटिक है, जैसे मेनिंजाइटिस है, मेनिंजियोवास्कुलर जिसको मैंने डिस्कस किया पहले भी। और लेट फॉर्म में GPI है, जनरल पैरालिसिस इंसेन है, जिसमें आदमी को कुछ नहीं पता चलता। उसके अंदर बहुत सारे साइकेट्रिक सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। टिबिस डॉर्सम ऑफ द स्पाइन इज इन्वॉल्व, और उसके अंदर आपको मालूम है कि क्या क्या चीज़ें हैं मौजूद हैं, कि उसके अंदर कुछ जो हैं वो जो है ना टच रिफ्लेक्सेस हैं, जो कि रफ टच जिसे कहते हैं, वो इसमें इंसर्ट होती हैं आके, और डीप सेंसेशन सारी की सारी जो कि यहाँ से जा रही हैं, वो सारी की सारी उधर से लेके जा रहा होता है।
जिसमें स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट है, दूसरे ट्रैक्ट्स हैं। डेवलप जो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है वो पिछला हिस्सा स्पाइन का होता है, और उसकी वजह से जो है ना वो आपको जो मिलेंगे स्पेसिफिकली जो है ना, आपको जो है ना वो सेंसेशन जो है ना लॉस होंगी आपकी टच की, पेन की सेंसेशन नहीं होंगी, लेकिन टच की रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा इसमें। इसके अलावा भी ज़ाहिर है डीप डीप आपकी रिफ्लेक्सेस चले गए हैं तो फिर जो है ना वो गेट एबनॉर्मलिटीज डेवलप हो जाएंगे। ये एक जनरल बात कर रहा हूँ, इसको अलग अलग करके अगर आप करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अदर फॉर्म में घुमटे से इन्फ्लेमेशन है, कहीं पे भी हो सकता है, ऑकुलर हो सकता है, अमाट्रोफिक लेटरल भी हो सकता है कि लेटरल पार्ट ऑफ द स्पाइन इन्वॉल्व हो जाए, लेकिन ये कम क्रेनियल नर्व पाल्सीज हैं, और ख़ास तौर पे 8th जो है रीजन है, 8th नर्व, क्रेनियल नर्व, एंड दैट इज शुड बी स्टडीड प्रॉपरली। दैट इज जो नर्व है वो आपको मालूम है कि वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व है, आपको ये डेवलप हो जाएगी, और फिर इसमें समय के सर्कुलर कैनाल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, सीवियर वर्टिगो हो जाएगा, पेशेंट को बैलेंस आउट हो जाएगा। और इस तरह से दूसरे रीजन भी, इसको अगर डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप तो थोड़ा सा सुनने को तैयार नहीं है, तो ये इतने लंबे लंबे अगर मौजूआत में बात करें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो न्यूरोसिफिलिस के अंदर जो है वो ये इन्होंने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया इसको, और यहाँ पे एक चीज़ बताई है, ड्राउजरलेस इम्यूनॉमिक है, ड्राउजरलेस कॉलम, ड्राउजर कॉलम डिजेनरेशन फॉर डी, O for orthopedic pain, that is Charcot joint, because deep sensation are lost, or R for reflexes which are decreased, deep tendon reflexes, S for shooting pain, and Argyle rubber centripulse were positive in this condition, and L for the locomotor ataxia is kind of, I for the impaired proprioception, deep sensation lost, और सिफिलिस एस पॉजिटिव। आप इसके टेस्ट जब कराएंगे सिफिलिस के तो वो पॉजिटिव आएंगे। इसकी रीजन देखिए आप, रेन एनहांसिंग रीजन है इसमें आपको मिल रहे हैं, ये गुमा है एक्चुअली जो आपको मिल रहा है। जीपीआई के बारे में मैंने पहले बताया कि साइकेट्रिक डिस्टर्बेंसेज हैं इसके अंदर ज़्यादा था, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, और फिर एक आदमी का बिल्कुल अटैक्स तो उसको होते हैं, फोबिक अटैक्स, और दूसरी चीज़ें पर्सनालिटी चेंजेस। अब यहाँ पे जो है ना एमआरआई दिखाया गया है, ये एमआरआई है, इसके अंदर जो है ना वो जगह जगह जो है गुमा है, और उनकी वजह से जहाँ पे भी ये गुमा बनेंगे वहाँ पर वो लीजन प्रोड्यूस कर देगा। इसलिए लोग फोकलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन ऑफ लीजन हम इसे कहते हैं ना, उसको आना चाहिए लोगों को कि भाई यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हुआ है, उसको ट्रेस करते ऊपर जाएँ, उसकी कॉज मालूम चलाएँ। यही न्यूरोलॉजी का आर्ट है। तो ये दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ माई डिस्कशन जो मैंने किया है, कि सारी टाइप आपको बता दी, उसकी समरी आपको बता दी, बहुत तफसील में मैं नहीं गया हूँ, वरना इट विल टेक आई थिंक 1.5 hours। आई डोंट वांट टू डिस्कस। आई थिंक कि इतना पार्ट अगर कोई आदमी एक दफ़ा वीडियो देखे, दूसरी दफ़ा देखे, तीसरी दफ़ा देखे, तो उसको ये समझ में आ जाएगा। तो किताब से फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अब आप इसको अप्लाई जब करते हैं अपनी लाइफ में तो आपको याद रह जाता है कि यार ये जो है ना इस तरह से होता है, प्राइमरी होती है, फिर उसके बाद सेकेंडरी होती है, फिर लेटेंट अर्ली होती है, लेट भी हो सकती है, उसके बाद एक सिफिलिस जो होती है वो टर्शरी होती है, जिसके अंदर न्यूरोलॉजिकल या न्यूरोवास्कुलर होगी, और दूसरी जो है वो कार्डियोवास्कुलर होगी। उसको जो है ना वो एलैबोरेट किया गया समझाने के लिए आपको। तो उम्मीद है कि ये चीज़ जो आगे चाहिए बड़ी लंबी हो गई है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको समझ में आ गई होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।